حامد میر پر کیپٹل ٹاک پروگرام کرنے پر پابندی عائد۔ گزشتہ 20 برس سے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر پر دوسری بار پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پہلی پابندی ان پر سابق آمر پرویز مشرف کے دور میں عائد کی گئی تھی۔ جیو نیوز نے اپنے معروف پروگرام کیپٹل ٹاک کے اینکر پرسن حامد میر پر پابندی عائد کر دی۔ آج رات سے وہ ناظرین کو کیپٹل ٹاک کی میزبانی کرتے دکھائی نہیں دیں گے۔ حامد میر نے 3 روز قبل اسد طور پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران گفتگو میں کہا تھا کہ اب ہم کھل کر بات کریں گے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر آپ نے صحافیوں پر حملے بند نہ کیے تو ہم بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس پر کہاں گولی چلائی تھی۔ حامد میر اپنی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا سمیت عالمی میڈیا پر زیر بحث ہیں۔ اسی وقت سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جیو کی انتظامیہ اب یہ بوجھ مشکل سے ہی برداشت کر پائے گی۔ حامد میر نے اپنی گفتگو کے دوران ہی کہہ دیا تھا کہ صحافی بہت سی باتیں اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا مالکان پر دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ادارے بند ہو جاتے ہیں اور کئی صحافی بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی۔ حامد میر نے گزشتہ دنوں اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک طرف صحافیوں کے تحفظ کا قانون لایا جا رہا ہے، دوسری طرف میڈیا ٹریبونلز بنائے جا رہے ہیں جو کروڑوں کے جرمانے کریں گے، 3 سال قید کی سزا دیں گے اور جن کے فیصلے ہائی کورٹ میں نہیں صرف سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکیں گے۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق پاکستان صحافیوں کے لیے دنیا کا 5واں خطرناک ملک ہے۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان کے مطابق ایک سال میں صحافیوں پر 148 حملے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان صرف 2 سال میں 139 سے 145 پر آ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستانی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے ذریعے میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے ذریعے میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ یہ میڈیا ماشاء اللہ قابل مذمت ہے، اس کی بھرپور مخالفت کرے گی۔ جرنلسٹ پروٹیکشن بل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اس آرڈیننس کی تیاری کرنا حکومت کا دورہ معیار ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ عالمی اداروں نے بھی ملک میں سینسرشپ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ اس اتھارٹی کے تحت میڈیا کی مزید سخت نگرانی کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اس اتھارٹی کے ذریعے صحافیوں کو نکالا جائے گا اور جرمانے لاگو کیے جائیں گے۔ شیری رحمان نے کہا کہ حکومت کی میڈیا کو وضاحت فراہم کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس قانون کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر قابو پانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ یہ تباہی سرکار کا سینسرشپ کو ادارتی اور قانونی تحفظ دینے کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد میڈیا ادارے یا تو ریاستی ترجمان بن جائیں گے یا بند ہو جائیں گے۔ حامد میر اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ صحافی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا مالکان پر دباؤ ڈالتی ہے، جس کے بعد ادارے بند ہو جاتے ہیں اور کئی صحافی بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ حامد میر کی اس گفتگو کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جیو نیوز انتظامیہ شاید بوجھ مشکل سے ہی اٹھا پائے اور ایسا ہی ہوا۔ حامد میر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا، جس میں انہوں نے مولانا زاہد الراشدی کے ایک کالم کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے لکھا کہ مولانا ظفر علی خان اور شورش کشمیری بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن مولانا زاہد الراشدی کے الفاظ کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ سینئر صحافی منیز جہانگیر کا کہنا ہے کہ حامد میر پر پابندی ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے اینکر اور صحافی ہیں اور انہیں صحافیوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، جیو نیوز ہار مان گیا۔ صحافی آسمہ شیرازی کا کہنا تھا کہ حامد میر کو اسکرین سے ہٹا کر اس کا پروگرام بند کر کے طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ جو الفاظ حامد میر نے کہے، انہوں نے کہا کہ تمام صحافی حامد میر کے ساتھ کھڑے ہیں، جیو نیوز کو اس ضمن میں اپنی پوزیشن واضح کرنا ہو۔ حامد میر نے اینکر آسمہ شیرازی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، میرے لیے اس میں کچھ بھی نیا نہیں، ماضی میں بھی مجھ پر 2 مرتبہ پابندی لگ چکی ہے، 2 بار نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، قاتلانہ حملوں میں بال بچا، لیکن آئین میں درج حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ترک نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی میں ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار ہوں اور میں کسی بھی حد تک جاؤں گا کیونکہ وہ میری فیملی کو دھمکا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ چند دن قبل حامد میر نے صحافی اسد علی طور پر نامعلوم افراد کے تشدد کے خلاف صحافیوں کے مظاہرے میں سخت تقریر کی تھی، جس کے بعد ان کے خلاف نامعلوم افراد اور ان کے حامی بہت سارے معلوم افراد کی جانب سے
सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई गई थी और उन्हें हिरासत में लेने का मुतालबा भी किया गया था। और वो इतराफ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो है उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आजादी साबित का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांवों की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आजादी मिलेगी। मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओ हो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पर बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वाले हो तुम, हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यास्मा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी, हम सारे गद्दार हैं। क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था,
तो जो मुनीर जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। मुझे नजर आ रहे हैं जो माजी में असदूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने, उन पर हमले किए गए, हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब एक करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ वजीर इत्तलात साहब जो है वो बीबीसी को कह रहे हैं जनाब इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है और मैसेज देने से पहले मैं आपके सामने एक एतराफ करना चाहता हूं और वो एतराफ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो है उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आजादी साबित का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आजादी मिलेगी। मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तुम गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओ हो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असदूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असदूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इस्राइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग
पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो। तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यासमा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी गद्दार, हम सारे गद्दार हैं। क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था।